اپنے سامنے موجود عمارت کو دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ آج 3 سال بعد وہ دوبارہ سے واپس اسی جگہ آن پہنچا تھا جہاں سے وہ 3 سال پہلے بھاگا تھا، اور ان 3 سالوں بعد جب وہ واپس آیا تھا تو اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ 3 سال کا عرصہ ہوا بن کر گزر گیا ہو۔ وہ آج بھی اسی جگہ اسی مقام پر کھڑا تھا جس مکان سے وہ چلا تھا۔ آج بھی اسے انہی سب چیزوں کا سامنا کرنا تھا جن سے جان چھڑوا کر وہ یو ایس سے چلا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اندر نہیں جانا؟ یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ اس کا چچا زاد کزن جو اس کا ہم عمر اور بہت اچھا دوست تھا اور اس کو ایئرپورٹ سے لینے کے لیے آیا تھا، اس کے وہیں کھڑے رہنے پر بولا، کیا ہوا؟ پریشان لگ رہے ہو؟ حیدر کے تاثرات دیکھ کر شہیر ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ انسان اپنی زندگی میں آنے والے مسائل سے جتنا مرضی بھاگ لے وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ وہ جیسے ہی انسان بھاگتے بھاگتے تھکنے لگتا ہے تو وہی مشکلات اس کے سامنے کھڑی اس کا منہ چڑھا رہی ہوتی ہیں۔ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولا، کہ تم ٹھیک رہے ہو، لیکن جنہیں تم اتنی آسانی سے اپنی زندگی کے مسائل اور مشکلات کہہ رہے ہو وہ در حقیقت وہی تمہاری زندگی کا سکون تھے۔ حیدر، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے یہاں سے جا کر کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے۔ وہ اس کی بات پر ثبت میں سر ہلاتا بولا تو حیدر نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، اب آگے ہو تو سارے مطلب مفہوم سمیت تمہیں سمجھ آ جائیں گے۔ وہ گاڑی کی ڈگی سے اس کے سوٹ کیس نکالتا گھر کے اندرونی جانب بڑھ گیا تو وہ بھی سر جھٹکتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ رلایا نہ کر اے زندگی، مجھے چپ کرانے والا اب کوئی نہیں۔ لڑکی، تیز ہاتھ چلاؤ، جان نہیں ہے تمہارے ہاتھوں میں۔ دن نکل آیا ہے، اب تک ناشتہ نہیں بن سکا تمہارے سے۔ اگر بچے خالی پیٹ اپنی درسگاہ پر گئے تو تمہارا وہ حشر کروں گی کہ یاد رکھو گی۔ وہ تیزی سے ناشتے کی ٹیبل سجا رہی تھی جب رابعہ بیگم کی کاٹدار آواز پر اس کے ہاتھوں میں مزید تیزی آئی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل سیٹ کر کے اس نے دم پر رکھی چائے کپوں میں ڈالی اور جلدی سے باہر کی جانب بڑھی۔ وہاں ایک شور برپا تھا۔ پھپھا اور چاچو ناشتہ کرنے کے ساتھ ٹی وی پر چلتی ہیڈ لائنز پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ رابعہ بیگم اور سمرا چچی کھانے کا مینیو ڈسکس کرنے کے ساتھ اسے بھی جھڑک دیتی۔ نوجوان پارٹی کالج یونیورسٹی جلدی جانے کے چکر میں ادھم مچائے ایک دوسرے سے چھین جھپٹ کرتے ناشتہ حلق سے اتار رہے تھے کہ چچی اور رابعہ بیگم کے سخت آرڈر تھے کہ کوئی بھی ناشتہ کیے بغیر گھر سے باہر نہیں جائے گا، تو مجبوراً سب کو ہی زہر مار کر کے کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا۔ ایسے میں وہ کھاتے کم اور ایک دوسرے سے الجھتے زیادہ تھے۔ السلام علیکم۔ وہ کپ بھاری سب کے سامنے رکھ کر چائے بنا رہی تھی جب مدھم مگر بھاری اور گمبھیر آواز پر اس کے ہاتھ لرز اٹھے۔ کپ سے چائے چھلک کر اس کا ہاتھ جلا گئی۔ سب اپنے شور اور کاموں میں مصروف اس کی آواز کو سن نہیں سکے۔ وہ چونچا میز کے آخر پر کھڑی پھپھو کو چائے دے رہی تھی تو وہ نہ صرف اس کی آواز سن چکی تھی بلکہ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ بھی چکی تھی۔ ہاتھ کی جلن کی پرواہ کیے وہ جلدی سے انہیں چائے پکڑا کر اندر کی جانب بڑھنے لگی تھی کہ اس کے ہاتھ کپائے تو کچھ چائے چھلک کر اس کے ہاتھ پر گری تو ہاتھ میں تھاما کپ گر کر ٹوٹ گیا۔ چٹاخ! اسی وقت رابعہ بیگم کا ہاتھ گھوما تھا اور اس کے منہ اور کمر پر نشان چھوڑ گیا۔ ارے او کمبخت، میرے نئے ڈنر سیٹ کا کپ توڑ دیا! وہ غصے میں اونچی آواز میں بولی۔ ٹیبل پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھائی تھی، صرف ایک لمحے کے لیے۔ سب دوبارہ سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے، جیسے اس سب سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ سب ان کا روزمرہ کا معمول تھا، جبکہ اس کے سامنے ایسی عزت افزائی پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے تیزی سے نیچے جھک کر ہاتھ سے ہی کرچیاں اٹھائیں جو کہ اس کے ہاتھ بھی زخمی کر چکی تھیں۔ بنا اس کی طرف دیکھے وہ جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ حیدر بھائی! ساما کی اچانک نظر اس پر پڑی تو وہ اپنی جگہ سے اسپرنگ کی طرح اچھل کر اس کی طرف بڑھا۔ اس کے بعد وہاں ہمچ کے علام
वो किचन की दीवार से टेक लगाए आंखें सख्ती से मूंदे खड़ी थी। उसका पूरा ध्यान दीवार से दो सही तरफ से आती आवाज़ों पर था। माँ सदके जाए मेरा बच्चा। राबिया बेगम बार बार उसका मुंह चूम कर उसे गले लगाती आंखें भर आई थी। वो सबसे हंसते मुस्कुराते मिल रहा था, मगर न जाने क्यों उसके वजूद में बेचैनी सरहद कर गई थी। तुम कब से आए हुए हो और यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े थे? समरा ने सवाल किया तो हैदर के बजाय शहीर ने तलखी से जवाब दिया, जब यहाँ पर सीरियल चल रहा था तुम घर के मामलात में टांग नहीं उड़ाया करो तो बेहतर है। राबिया बेगम ने उसे सख्ती घूरी से नवाजते तनबीह की। जी, ताकि ये घर हर वक्त थाने का मनाजर पेश करता रहे, जहाँ पहले ही आप लोग एक बेचारी कमजोर सी लड़की से जिस्मानी रिमांड पर जाने कौन सा इकबाल जुर्म करवाने की कोशिश में लगे नजर आते हैं। वो चिढ़कर बोलता, हैदर का सूटकेस फर्श पर पटक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हैदर ने हैरत से उसके रवैये को देखा। हैदर, बच्चे उसे छोड़ो। उसने जब से पुलिस की नौकरी शुरू की है उसके दिमाग में हर वक्त थाना कचहरी और मार पीट ही गर्दिश करती रहती है। तुम बताओ, तुम्हें अचानक वापसी का ख्याल कैसे आ गया? समरा उसे बाजू से पकड़कर खाने की टेबल पर ले आई। उसने नादस्ता एक नज़र मेज पर बैठे नफूस पर गई, पर वो उसे नजर नहीं आई। उसका दिल बुझ सा गया। सबीन, अरमीन, बेटा जाओ भाई के लिए नाश्ता बना कर लाओ। सिमरा ने अपनी बेटियों को घूर कर वहां से हटाना चाहा, जो पटर पटर करती हैदर के सर पर सवार हो गई थी कि आया वो उनके लिए गिफ्ट लेकर आया है या नहीं। नहीं बेटा, तुम खुद नहीं बनाना, उसे कहना कि बना कर दे। इससे पहले कि हैदर कुछ बोलता, राबिया बेगम नाक चढ़ाकर बोली, जानती थी कि अगर वो दोनों नाश्ता बनाने गई तो किचन की वो हालत होगी कि आलमान, और जो नाश्ता बनेगा वो भी खाने लायक तो हरगिज भी नहीं होगा। मैं नाश्ता नहीं करूंगा, हो सके तो एक कप स्ट्रॉन्ग सी चाय बनवा दें, यही काफ़ी है। वो एक टांग फोल्ड करके सर कुर्सी की पुष्ट पर अटका कर रिलैक्स होकर बैठ गया। निगाहें बेचैनी से किसी को तलाश करने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी बेचैनी पर उसे गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से उसने 3 साल परदेश की खाक छानी थी। आज दिल उसी को देखने का तलबगार क्यों कर था। हैदर भाई, मुझे लगा था कि आप जब पाकिस्तान आएंगे तो आपके पहलू में एक अदद गोरी होगी और आपकी गोद में हमारा एक अदद भतीजा या भतीजी होंगे। हमदान शरारती अंदाज में बोला तो उसकी बात पर वो उसे घूरने लगा, जबकि राबिया बेगम ने इस मनाजर को तस्वर करके झरझरी ली और बाआवाज बुलंद इस्तफार की पड़ा। उसके अंदाज पर वहाँ एक ज़बरदस्त कहका पड़ा था। ये सोच अपने दिमाग में लाने से पहले तुम्हें ये भी सोचना चाहिए था कि मेरी एक अदद बीवी इस घर में मौजूद है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हल्के फुल्के अंदाज में बोला और फिर अपनी बात पर खुद भी हैरान हुआ था, जबकि उसकी बात पर वहाँ पर सन्नाटा छा गया था और उसकी बीवी जो उसका नाश्ता बनाकर किचन से बाहर निकली थी, हमदान की बात पर उसके कदम जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए थे और शिद्दत से हैदर के जवाब की मुंतज़िर थी और उसके जवाब पर लखड़ाई थी। सबको अपनी तरफ मुतवज्जो देखकर हैदर नासमझी से उनकी शक्लें देखने लगा, जो यकटक उसे देख बल्कि घूर रहे थे। आखिर इस खामोशी को शहीर की आवाज़ ने तोड़ा। बीवी इस घर में छोड़कर गए थे तो सबको बावर भी करवा कर जाते कि वो तुम्हारी बीवी है। क्या मतलब तुम्हारी बात का? वो पेशानी पर बल डालकर उसके सामने खड़ा होकर सख्त अंदाज में बोला कि उसे शहीर के अंदाज पर कुछ गलत होने का एहसास हुआ। शहीर उस वक्त पुलिस यूनिफॉर्म में मौजूद थाने जाने के लिए तैयार था। शहीर ने बिना कुछ कहे किचन के दरवाजे की तरफ इशारा किया तो उसने उस तरफ देखा जहां वो खड़ी थी। वो चंद लम्हों बाद उसे पहचान पाया था। उसने काले और सफ़ेद इम्तिराज का लिबास, सादा सा लिबास पहना हुआ था, जो कि अपनी असल रंगत खो रहा था। बालों की चुटियां बनाकर दाएं तरफ डाले हुए थे। चंद बेपरवाह लिटे चेहरे का तौफ कर रही थी। थोड़ी हाथों में ट्रे थी जिसमें यकीनन उसके लिए बनाया गया नाश्ता रखा था और वो घबराई सी खड़ी थी। हैदर ने हैरत से उसका सरापता जायजा लिया और इसी हैरत से उसने अपनी माँ को देखा, जिन्हों से लम्हे भर के लिए उसने नजरें चुराई। तो उसने सवालिया नजरों से शहीर को देखा, जो सर झटक कर किचन की तरफ बढ़ा। उसके हाथों से ट्रे लेकर शेल्फ पर रखी ट्रे में रखे सैंडविच और चाय का मग थामा और वहीं थामे वो बाहर निकल गया।
ऐसे क्यों देख रहे हो? राबिया बेगम उसकी नज़रों से खाइफ होती बोली, आपने अभी अनाया पर हाथ उठाया था। वो अभी तक शौक की कैफियत में था। उसे लगा था कि शायद उसकी माँ ने किसी मुलाजमा पर हाथ उठाया था और ये बात भी उसे पसंद नहीं आई थी। वो इन्हें इस वक्त टोकने में ही वाला था जब शहीर के बोलने पर खामोश हो गया था, और अब जब ये एहसास हुआ था कि मुलाजमा की बजाय उसकी बीवी पर हाथ उठाया गया था, वो शायद पिछले 3 सालों से उठाया जाता रहा था। ये बात उसके अंदर शोले भड़का गई थी। अच्छा छोड़ो इस बात को, तुम इतना लंबा सफर करके आए हो, थक क्यों छोड़ूं इस बात को? उसकी बात काट कर वो तेज लहजे में बोला। उसामा, जो कि भाई के आने की खुशी में कॉलेज से छुट्टी का सोच रह चुका था, उसका जल्लाद मूड देखकर रामीन और सबीन को बाहर आने का इशारा करता वहां से खिसक गया कि तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हमदान भी खामोशी के साथ वहां से निकल गया कि राबिया बेगम सुबह सुबह उसके तीली लगाने पर इस खुशमगीन निगाहों से देख रही थी। पीछे हारिस साहब, हैदर के वालिद, उमर चचा, समरा चची और राबिया बेगम और वो मौजूद थे। बताए ना मामा, क्यों छोड़ दूं? वो तो आपकी लाडली भतीजी थी ना, आपको अपनी औलाद से ज्यादा अजीज थी। मशल को आप इसकी मिसालें दिया करती थी, मुझसे जबरदस्ती इसकी शादी करवाई, तो अब ये सब क्या है? वो हैरत, बेयकीनी और गुस्से की मिली जुली कैफियत का शिकार तासुब से बोला, तुमसे उसकी शादी मैंने अपनी बेटी। बस मामा प्लीज अभी कुछ नहीं कहें, पहले मुझे इस बात पर यकीन कर लेने दें कि सारा दिन उस लड़की की मोहब्बत में कसीदे पढ़ने वाली उसकी लाडली फुप्पो उस पर बिला वजह भी हाथ उठाती हैं। वो अपना हाथ उठाकर इन्हें रोकता अपने कमरे में चला गया। कमरे में आकर वो यहाँ से वहाँ चक्कर काटता खुद पर काबू पाने की कोशिशें कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसे अपनी खुद की हालत पर हैरत थी। उसे क्यों इतना गुस्सा आ रहा था? क्यों बेचैनी उसके रगो पेट में सराहत कर गई थी? क्यों उसका चेहरा बार बार निगाहों के सामने आ जाता था? कमरे में घुटन महसूस होने लगी तो वो टेरेस में आ गया। दुपट्टा कमर पर बांधे लॉन में खड़ी पौधों को पानी दे रही थी। चेहरे पर उदासी की जगह अफसुदा सी मुस्कुराहट थी और हैदर को लगा जैसे उसकी मुस्कुराहट ने उसे अपने शहर में जगह लिया हो। वो बेसाख्ता रेंगन पर हाथ रखकर थोड़ा सा झुककर बतूर उसे देखने लगा। जब उसे एहसास हुआ कि उसके लब हिल रहे हैं जैसे वो किसी से बात कर रही हो, पर किससे? लॉन में तो उसके अलावा कोई और मौजूद नहीं था और उसके पास फोन भी मौजूद नहीं था। उसे एकदम से तजस्सुस हुआ कि देखे वो किससे बात कर रही है, क्या बोल रही है। एक तो फासला ज्यादा था, दूसरा वो बोल बहुत मध्यम रही थी, तो वो उसकी आवाज नहीं सुन पाया था। या एकदम से उस पर हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि वो पौधों से बातें कर रही थी। बेसाख्त उसके लब मुस्कुरा उठे थे। दिल चाह के नीचे जाकर सुने वो क्या बात कर रही है, और अपनी दिल की आवाज पर लबक कहते वो नीचे जाने वाला था जब उसे समरा चची वहां आती नजर आई। ऐ लड़की, तुम यहाँ खड़ी हो? अंदर डाइनिंग टेबल पर बर्तनों का ढेर रखा है, उसे साफ करो, और किचन भी ऐसी ही गंदा पड़ा है, वो भी साफ करो, जल्दी करो। शाबाश। उसके बाद मेरे सर में तेल भी लगा देना। वो दूर से ही उसे आवाजें लगाती पलट गई। उनका लहजा हकमानिया था। उसके अंदाज पर हैदर की पेशानी पर बल पड़े। जी चची, मैं बस आ ही रही थी। उसकी आवाज आपके नस्बता ऊंची थी। उसने पानी बंद करके पैप अपनी जगह पर रखा और अंदर जाने लगी। फिर एक ख्याल आने पर पलटी और एक फ्लाइंग केस पौधों की तरफ उछाली। फिर अपनी बे अख्तियारी पर खुद ही खिलखिलाकर हंस दी जब अचानक उसकी नजर अपने कमरे के टेरेस पर पड़ी, जहां पर हैदर खड़ा पुरशोक नजरों से उसे देख रहा था। एक लम्हे को उनकी नजरें मिली थी। एक लम्हा दिल अजीब अंदाज में धड़का था। हैदर की नजरों की तपिश थी कि वो सर झुका गई। उसने जल्दी से कमर पर बंधा दुपट्टा खोलकर अच्छे से अपने गिर्द लपेटा। हैदर की खुद पर गड़ी नजरें महसूस करती सुर्ख चेहरे के साथ तकरीबन भागते हुए घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गई। हैदर भी कमरे में आकर गिरने के अंदाज में बेड पर लेटा और आंखें मूंद ली। तो हैदर साहब, इतने साल जिसके एहसास को गिल्ट समझकर झुटलाते आए हो, वो दरअसल गिल्ट नहीं, मोहब्बत थी जो तुम्हें अपनी महरम से हुई, और तुफ है तुम पर जब तुम समझ ही नहीं सके था। तकिए को बाहों में लिए वो आड़े तिरछे अंदाज में लेटा मुस्कुराते लबों और बंद आंखों से एतराफ़ मोहब्बत कर गया था। मुस्तफिक फकीर हूँ मैं इश्क की नगरी का, कोई तो दे दे मेरा महबूब फितराने में।
उसने सारा दिन सोकर गुजारा था और शाम में वो सब कजन्स लॉन्ज में बैठकर गपशप करने लगे। इतने अरसे बाद उसने गपशप करना उसे अच्छा लग रहा था। रात हुई तो वो अपने किसी ज़रूरी काम के लिए चला गया था। वो जिस वक्त घर आया तो घड़ी की सुइयां एक का हिस्सा अबूर कर चुकी थी। पूरा घर अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। घर में दाखिल होती उसे सुबह का मनाजिर याद आया था। दिल ने बेसाख्त उसे एक नज़र देखने की तमन्ना की, जाने इस वक्त वो कहाँ हो। किचन की लाइट जलती देखकर उसके लब मुस्कुराए। उसके कदम बखुद खुद किचन की जाने बढ़े, मगर किचन में शहीर को खड़ा देखकर वो बदमजा हुआ। फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर बिना कोई बात किए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जब पीछे से शहीर ने हांग लगाई, सुनो, मेरे कमरे के दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुले हैं, सो अगर रात को रूम से निकाल दिए जाओ तो पनाह के लिए मेरे कमरे में आ सकते हो। रहम दिल जो ठहरा, वो उसकी फजूल गोई पर सर झटकता वहां से हट आया था। कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में टेबल लैंप की मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी। दरवाज़ा बंद करके वो पलटा तो ठिठक कर रुक गया। सामने ही बेड पर वो महवरे इस्तरात थी। अब उसे शहीर की बात बकवास का मतलब समझ आया था। उसे इग्नोर करता वो पानी की बोतल साइड टेबल पर रख कर अलमारी से अपने लिए ट्राउज़र शर्ट निकालता वाशरूम की तरफ बढ़ गया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो अपने बाल तौली से रगड़ता बाहर निकला। तौलिया सोफे की पुश्त पर डालकर बेड पर बैठ गया। घूंट घूंट पानी हलक से उतारता वो सोच नजरों से उसे देख रहा था। अनाया के रेशमी जैसे सिल्की बाल चेहरे पर बिखरे, उसका आधा चेहरा ढांपे हुए थे। हैदर ने हाथ बढ़ाकर उसके बाल चेहरे से हटाए। वो थोड़ा सा कसमसाई थी और फिर करवट उसकी तरफ बदल कर दोबारा सो गई। यखबख्ता कमरे में वो बिना कोई चादर ओढ़े सुकड़ी सिमटी लेटी उसकी तवज्जो खींच रही थी। उसने पैरों में रखी चादर उस पर डाली और खुद भी उसकी तरफ रुख करके लेट गया। हैदर ने उसके पैरों में रखी चादर उस पर डाली और खुद भी उसकी तरफ रुख करके लेट गया। हैदर की निगाहें अनाया के चेहरे पर जमी थी। सोते में भी उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। हैदर का दिल एक नए अंदाज में धड़कने लगा। उसने अचानक बिलादारी थोड़ा सा झुककर उसकी पेशानी को छुआ था और फिर अपनी हरकत पर वो शिड़िट रह गया था। अनाया का नाजुक का बुरी तरह उसके हवासों नाजुक सा एहसास बुरी तरह उसके हवासों पर छाने लगा। जज्बात का एक मुंह जोर समुंदर उसके अंदर तूफान उठाने लगा। वो 3 साल मगरिब में गुजार कर आया था और इन 3 सालों में उसने वहां पर बेशुमार हुस्न देखा था, हजबाना हुसन। और वो अपने अंदर बड़े बड़े अच्छे और पाठशाल लोगों का ईमान डगमगाने की सलाहियत रखता था, मगर उसे आज तक किसी ने इतनी बुरी तरह मुतासिर नहीं किया था कि वो बेसाख्त उसकी तरफ खींचा चला जाए। ये शायद उनके दरमियान मौजूद रिश्ते का असर था, कुछ मलकियत का एहसास और कुछ मोहब्बत का एतराफ़ के वो उसकी जानिब खींचने लगा था। खुद पर जब्त करते उसने सर के नीचे से तकिया निकालकर दरमियान में रखा और लाइट ऑफ करता आंखों पर बाजू रखकर चुट ले गया, मगर उसकी मौजूदगी का एहसास और थोड़ी थोड़ी देर में उसके वजूद में होती हरकत उसे किसी तरह भी सुकून नहीं लेने दे रही थी। वो एक झटके से उठा और बैठ के बिल्कुल सामने पड़े सोफे पर जाकर लेट गया, मगर फिर भी तेज तेज धड़कते दिल पर काबू पाना मुश्किल लगा तो वो टेरेस में आ गया। उसकी गैर मौजूदगी में इस घर में अनाया के साथ जो कुछ होता रहा था उसकी एक झलक वो सुबह आते ही देख चुका था। इस सब के बाद क्या वो उससे तवक्को रख सकता था कि वो उस रिश्ते को बाखुशी कबूल करेगी, जिस रिश्ते को वो अपने गुस्से और जिद की वजह से वो 3 साल पहले ठुकरा कर चला गया था। आज अगर वो भी इस रिश्ते को ठुकरा दे तो ये सोचकर ही उसके अंदर शोले से भड़कने लगे। वो इन्हीं सोचों में गुम था जब अजान की आवाज़ उसके कानों से टकराई तो वो नमाज पढ़ने की नीयत से अंदर बढ़ा। वो अभी तक गहरी नींद में थी, बिना ये जाने कि उसके दिल पर क्या क़यामत बर्पा कर गई थी। उस पर एक नज़र डालता मस्जिद जाने के लिए कमरे से निकल गया। मामूल के मुताबिक फजर के वक्त उसकी आंख खुल गई। आंखों में नींद की हल्की हल्की खुमारी थी। कमरे में लाइट जलती देख वो थोड़ी हैरान हुई।
किसी एहसास के तहत उसने अपनी पेशानी को छुआ। तभी उसे शिद्दत से महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई दूसरा भी मौजूद है। फिर अपना वहम समझती उठने लगी। जब बेड की दूसरी तरफ चादर पर पड़ी सिलवटें देखकर उसका दिमाग भंग से उड़ा था। वो एक झटके से उठ बैठी, सारी खुमारी और सुस्ती उड़ान छू हुई। जब टेरेस पर किसी का अक्स महसूस करके वो दबे कदमों से बिस्तर से निकली, खौफ से हाथ पांव कंपा रहे थे। सेंटर टेबल पर रखा वॉच दोनों हाथों से मजबूती से थाम कर वो बिना आवाज किए आगे बढ़ी। जब उसे उसकी पुष्ट पर हैदर का गुमान हुआ, अपने शक की तस्दीक के लिए दीवार के साथ लगकर उसे देखने लगी। कहनिया राइंगल पर टिका कर सर हाथों में थामे थोड़ा सा झुक कर खड़ा वो वही था। उसे वहां देखकर उसका दिल धक से रह गया। हाथों में पकड़े वॉच पर गिरफ्त ढीली पड़ी। गिरने के डर से उसने वॉच दीवार के साथ फर्श पर रखा। वो कैसे भूल सकती थी कि वो इसके कमरे में रह रही थी, और जब वो घर वापस आ गया था तो कमरे में उसकी मौजूदगी तो लाजम थी। दिन में भी तो वो इसी कमरे में मौजूद था। वो कैसे उसकी मौजूदगी को फरमोश कर गई थी? कैसे उसे ये ख्याल क्यों नहीं आया? उसने बेसाख्त अपनी पेशानी को छुआ तो एक अनोखा सा लम्स महसूस करके उसकी आंखें नम हुई। उसे इसके कमरे नहीं आना चाहिए था। फिर वो कहाँ जाती? उसामा, हमदान और शहीद बेवक्त घर के किसी भी हिस्से में पाए जा सकते थे सिवाय इस कमरे के जहाँ वो मौजूद थी। वो कहाँ जाए सोचकर उसका दिल भरने लगा। तभी अजान की आवाज़ पर वो चौंकी थी। चौंका वो भी था। उसने हाथों में गिराया, सर उठाया और बातूर अजान सुनने लगा। वो उल्टे कदमों वापस हुई और खामोशी से चादर दोबारा से अपने ऊपर ओढ़ कर आंखें बंद करके लेट गई। जब उसके कदमों की चाप कमरे में महसूस करके सांस तक रोक गई। जैसे ही वो कमरे से निकला, वो तेजी से उठ बैठी और कब से रुकी हुई सांसें बहाल करने लगी। क्या इसकी ज़िंदगी अब बेहतर होने वाली थी या फिर ज़िंदगी उस पर मज़ीद तंग होने वाली थी? दिमाग में मुख्तलिफ सोचों के जगड़ चलने लगे। फिर अपना सर झटक कर खुद को इन सब सोचों से आज़ाद थी। वो नमाज के लिए उठी। नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करके जब फारिग हुई तो बाहर पूरी तरह से रोशनी फैली हुई थी कि वो किचन में आई और पप्पो के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में ले आई कि वो सुबह नमाज के बाद फौरन चाय पीती थी। दरवाजे पर दस्तक देकर वो कमरे में आई तो पप्पो ने कुरान पाक बंद करके अलमारी में रखा। रात को कहाँ थी? उन्होंने तीखे लहजे में सवाल किया। वो जांचती नजरें सरता पा उसका जायजा लिया। उसके सवाल और देखने के अंदाज पर उसने सख्ती से आंखें मेज ली। दिल किया कि कहीं छुप जाए। जाने क्यों उसे अपना आप चोर लगने लगा। रूम में भ्राए लहजे में इन्हें मुख्तसर जवाब देकर वो भारी दिल से किचन में आ गई और शेल्फ से टेक लगाकर खड़ी होंठ काटने लगी। फिर गहरा सांस खींचकर खुद को सब सोचों से आजाद करना चाहा। आज चुनाचा इतवार था तो इतवार को सभी देर से उठते थे और इन सब के लिए फरमाइशी नाश्ता बनता था। तो इस सब के उठने तक वो बिल्कुल फारिग थी। करने को कुछ था नहीं और कमरे में वो जाना नहीं चाहती थी कि जिसका कमरा था वो किसी भी वक्त आ जाता और फिर से फुप्पो की नज़रों का सामना करना तन्हाई मुश्किल साबित होता। वो लॉन में आ गई और जूता एक तरफ उतारती नरम घास पर नंगे पांव चलने लगी। सुबह के वक्त नंगे पांव घास पर चलना उसे बहुत पसंद था। सर झुकाकर अपने पैरों पर नजरें जमाए छोटे छोटे कदम उठाती वो अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाती थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। वहाँ रिश्तों में करवाहटें नहीं थी। बदली नहीं हूँ मैं, बस दुनिया को समझ गई हूँ। उसे लॉन में आए अभी थोड़ी देर ही हुई थी जब शोर की आवाज़ पर चौंक गई। दरवाजे पर खड़े गार्ड एक खातून से ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। वो शायद इस खातून को वहां से जाने का बोल रहे थे और वो खातून बस जिद थी कि इन्हें अंदर जाने दिया जाए। वो थोड़ा सा आगे होकर मामला समझने की कोशिश करने लगी जब उसकी नज़र उस खातून पर पड़ी। वो खातून उसके मैके से आई थी जो कि उनकी बहुत पुरानी मुलाजमा थी। उसके घर के तमाम अफराद की तरह फराज हाउस के मुलाजमीन का भी इस घर में दाखिला मना था। खान चाचा क्या हुआ? उसने गार्ड को मुखातिब किया। मकसद इस मुलाजमा को अपनी तरफ मुतवज्जो करना था।
और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई थी। वो गार्ड को परे हटाती अनाया के पास आ गई। बेटा, मैं तुम्हारा हाल अहवाल पूछने को आई थी। इतने बदतमीज गार्ड हैं, छोटे बड़े का लिहाज नहीं है। कब से कह रही हूँ कि एक नज़र देखकर चली जाऊंगी, पर सुनते ही नहीं है। खुदा पूछे इतने जालिम लोगों से। वो गार्ड को घूरती बाआवाज़ बुलंद बड़बड़ाई तो गार्ड भी इन्हें घूरने लगा। आका भी, इनकी मजबूरी है, नौकरी है इनकी। आप बताएं, घर पर सब ठीक है ना? मामा कैसी हैं? बाबा ठीक है, भाई ठीक है, और भाभी? घर पर किसी का रवैया उनके साथ सख्त तो नहीं? आका भी, आप इनसे कह दीजिएगा सब से कि मैं बहुत खुश हूँ। सबको मेरी कसम दीजिएगा कि वो लोग भाभी पर मेरी वजह से कोई सख्ती नहीं करें। वो आकाबी को दोनों हाथ बाजुओं से थामे तेजी से बोलती एक ही सांस में इतना कुछ कह कर गई थी। बीबी, जल्दी करो, जल्दी यहाँ से। किसी ने तुम्हें देख लिया तो हम नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। गार्ड आकाबी को देखते सख्ती से बोला। हाँ हाँ, जा रही हूँ, ज्यादा सौदापन दिखाने की जरूरत नहीं है। आकाबी उसे करारा सा जवाब देती अनाया की तरफ पलटी और उसे नरमी से अपने साथ लगाते हुए नामहसूस अंदाज में उसके हाथ में एक डब्बा थमाया। वो बिना देखते भी जानती थी कि मोबाइल था, जो अशर भाई ने उसके लिए मुख्तलिफ वक्त में भेजे थे, और हमेशा उससे ये कहकर मोबाइल ले लिया जाता था कि अगर मेरी बेटी मुझसे बात नहीं कर सकती तो तुम भी अपने माँ बाप से बात नहीं करोगी। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो वहीं खड़ी अपनी सोचों में गुम थी जब भारी गंभीर आवाज पर चौंकी। आकाबी जा चुकी थी। वो गार्ड को नागवारी से वहां से हटने का इशारा करता उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। वो मैं वहां वैसे ही वॉक करने आई थी। वो उससे नजरें चुराती लबों पे जबान फेर कर बोली, ओके, अगर वॉक कर ली हो तो चलें। उसने आबरूएं चुकाकर सवाल किया कि किधर? वो एकदम से बुखला गई। उसकी बुखलाहट पे हैदर के लबों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखर गई जिसे वो बड़ी बड़ी महारत से छुपा गया और संजीदगी से गोया हुआ, मैं अंदर जाने की बात कर रहा था। आपको कहीं और जाने के तो कहें, मैं ले चलता हूँ। नहीं, कहीं भी नहीं जाना। बहजर वो संजीदगी से बोला, मगर उसकी आंखों की लपक उसे मुखला रही थी। वो तेजी से घर के अंदरूनी तरफ बढ़ा तो वो भी उसके हम कदम हुआ। अपने कमरे की खिड़की से ये मनाजर देखती राबिया बेगम ने अपने लब सख्ती से भेजे। ओ, आपका मूड क्यों खराब है? हारिस ने अखबार से नजरें हटाकर उनके तपे चेहरे पर निगाह डालते हुए सवाल किया। आप अपने बेटे से पूछते क्यों नहीं कि हैं आखिर के इसी लड़की से जबरदस्ती शादी करवाने पर वो नाराज होकर बाहर चला गया था, तो ऐसे कौन से सुरखाब के पास लग गए हैं अब उस लड़की में जो उसको कुछ कहने कल से मुंह फुलाए घूम रहा है? वो गुस्से में बुलंद आवाज से बोली। हारिस साहब के कोई भी जवाब देने से पहले दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर आया था। उसके चंद सेकंड बाद अनाया भी दस्तक देती कमरे में दाखिल हुई। उसे वहां पहले से मौजूद देखकर वो गड़बड़ाई थी, मगर अब ऐसे पलट जाना मुनासिब नहीं लगा। मिल गई तुम्हें बीवी से फुर्सत, आ गई माँ की याद। उसके अंदर दाखिल होते ही उन्होंने तंज किया। जब ध्यान दरवाजे में खड़ी अनाया की तरफ गया, राबिया बेगम ने एक चुपती नजर इन दोनों पर डाली और फिर शौहर को देखा। पप्पू, आप नाश्ते में क्या लेंगी? वो वहां से भागने को परतोलती जल्दी से बोली। हाँ, तुम थोड़ा सा जहर दे दो बीबी मुझे, ताकि जान ही छूटे सबकी तुम मुझसे। वो कड़वे लहजे में बोली तो वो इनकी बात पर लब दबाती दांतों की मदद से काटने लगी। ये शायद आंसू रोकने की एक लाशूरी कोशिश थी। खत्म, अपना दर्द कर जाऊं, जी में आता है आज मर जाऊं। मामा, हैदर ने इन्हें टोकते हुए तनबीह नजरों से देखा और साथ ही उसकी तरफ मुड़ता उसे सबका एक जैसा नाश्ता बनाने का कहा तो वह फौरन वहां से गायब हो गई। वो रूम का दरवाजा बंद करके माँ की तरफ पलटा और इन्हें कंधों से थाम कर इन्हें बेड पर बिठाया और खुद उनका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम कर पंजों की बल इनके कदमों में बैठ गया। मामा, आप अनाया के साथ ऐसा बिहेवियर क्यों करती हैं? आपको उससे क्या शिकायतें हैं जिनकी बिना पर आप उससे ऐसा रवैया रखने पर मजबूर है? उसने बतूर इन्हें देखते सवाल किया तो राबिया बेगम मुझसे नजरें चुरा गई। बताएं मामा, उसकी कोई गलती है तो बताएं ना, मैं खुद उससे बास परस करूंगा। कुछ देर बाद उसने अपना सवाल दोबारा दोहराया तो अपने बेटे का चेहरा देखकर रह गई।
जो इस वक्त रफ टफ हुलिये में भी इतना खूबरू लग रहा था कि उन्होंने बेसाख दिल ही दिल में माशाल्लाह बोल पड़ा। मामा, उनका खोया अंदाज देखकर हैदर ने इन्हें दोबारा से अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहा, और इन्हें ढूंढने पर भी उसकी कोई ऐसी खामी नजर नहीं आई जिस वजह से वो इस तरह के स्कूल की सलूक की मुस्तहिक ठहराई गई थी। बाबा आप बताएं। मामा की खामोशी पर उसने बाप की तरफ सवालिया नजरों से देखा। कोई भी कसूर नहीं है उसका, उन्होंने फौरन जवाब दिया तो उसकी नज़रें दोबारा से माँ के चेहरे पर मुस्कुर हो गई जिसे उनके बोलने का मुंतज़िर हो। उसके मैके में मेरी बेटी अगर खुश नहीं रहेगी तो इस घर में मैं उनकी बेटी को भी खुश नहीं रहने दूंगी। वो लबों पर जबान फेरती तलखी से बोली तो हैदर के सर पर जैसे हैरत का पहाड़ टूट पड़ा था। मामा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने एक सादी सी शादी को क्रॉस मैरिज बना दिया, और मैं ये समझ रहा था कि अपनी भांजी की मोहब्बत में मुझ पर ज़बरदस्ती की गई है। और आप, उसने बात के दरमियान गहरा सांस लेकर अपने अंदर उठते अश्तियाल की लहर को काबू पाते उसने खुद को कंपोज किया। मामा, क्या आप चाहती हैं कि रोज़ महशर इस बात पर मेरी पकड़ हो कि मैं अपनी बीवी से इंसाफ का मामला नहीं कर सका? क्या आप चाहती हैं कि रोज़ महशर वो इस बात पर मेरा गिरबान पकड़े कि मैंने उसे यहाँ तना आप लोगों के रहम करम पर छोड़ दिया, वो और कभी पलट कर उसकी खबर तक नहीं ली? वो उस उनका हाथ थामे उनको देखने नरमी से बोल रहा था, और वो ना चाहते हुए भी उसका कहा एक लफ्ज़ बहुत गौर से सुन रही थी, और उसकी बात पर वो तड़प उठी थी। मामा, हमारी इस बात पर यकीन है ना कि हर इंसान ने मरना है और अपने की जजा और सज़ा भुगतनी है। तो फिर क्या आप ये चाहती हैं कि आपके बेटे को बीवी पर जुल्म करने के गुनाह में अजाब कब्र और अजाब हशर दिया जाए? और बस चुप कर जाओ हैदर। वो उसको चुप करवाती उसकी पेशानी चूम गई थी। एक लम्हे में इनका चेहरा आंसुओं से तर हो गया था। माँ, अशर का अपनी बीवी से रवैया जैसा भी है, उसका जवाब दे वो खुद होगा। उसके किए का सज़ा कैसी मासूम को देकर अपनी कब्र क्यों भारी करें? मैं 1-2 दिन में जाऊंगा मामू के घर। अगर मशल भी खुश नहीं लगी तो मैं अशर से बात करूंगा। अगर वो बात नहीं समझा तो मैं मशल को खुद उस घर से वापस ले आऊंगा। मगर वो बात करते करते रुका। थूक निकल कर उसने एक नज़र माँ और बाप दोनों के चेहरों को देखा और आस्तगी से माँ के कदमों से उठकर खिड़की में जा खड़ा हुआ। मगर इस सब में कोई भी मेरी बीवी को किसी भी बात के लिए कसूरवार नहीं ठहराएगा। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब किसी को भी मैं इससे ज्यादती नहीं करने दूंगा। वो अब सर्द लहजे में दो टोक अंदाज में बोलता कमरे से बाहर निकल गया, और फिर तैयार होकर बिना नाश्ते के घर से भी बाहर निकल गया। वो जब घर वापस आया तो घड़ी दोपहर के 2:30 बजा रही थी। सबीन, रामीन, उसामा, हमदान और शहीद लॉन्ज में बैठे कोई मूवी देख रहे थे, जबकि तमाम बड़े पकौड़ों के साथ इंसाफ करने के साथ चाय पीने में मसरूफ थे। वो वहां पर मौजूद नहीं थी। किचन से खटपट की आवाजें आ रही थी। यकीनन वो किचन में मौजूद थी। सबके मुश्तरका सलाम करता वो नौजवान पार्टी के साथ सोफे पर लेटने के अंदाज में बैठ गया। कौन सी मूवी देखी जा रही है? उसने किसी को भी मुखातिब किए बगैर सवाल किया। सलमान खान की वांटेड मूवी देख रहे हैं। क्या तुम भी हमारे साथ मूवी देखने वाले हो? शहीद ने सवाल किया। जब मुझे मूवी देखने से डॉक्टर ने मना किया है क्या? उसने आईब्रोज उचकाकर उल्टा उससे सवाल किया तो उसने कंधे उचकाए। भाई, अगर तुम जैसा रुखा बंदा यूएस से आने के बाद मूवी देखने लगे तो। शहीद ने दस्ता बात अधूरी छोड़ी अंदाज से साफ छेड़ने वाला था। हैदर ने उसे एक जबरदस्त घूरी से नवाजा। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? वो किचन से उठती खुशबू को महसूस करता सीधा हो बैठा कि उसने नाश्ता भी नहीं किया था, तो अभी उसकी भूख एकदम से चमक उठी थी। भाई, बड़ी देर सिर्फ खुशबू ही आ रही है, बनकर कुछ भी नहीं आया। हमदान ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा तो उसकी शक्ल देखकर वो मुस्कुरा दिया। भाई, कसम ले लें, जब जब ऐसी खुशबू किचन से उठती है तो पेट में दौड़ते कुत्ते मजीद स्पीड पकड़ लेते हैं। सामा ने दुहाई दी, कितना ठूसता है तू मोटे। अभी थोड़ी देर पहले तो तूने नाश्ता किया है और साथ ही भूख भी लग गई है। शहीद ने उसकी टांग खींची तो सब दबा दबा सा हंस दिए। चाहे पनाहे तेरी।
بھائی آپ کو بھوک لگی ہے؟ رامین نے اسے سوال کیا تو اس نے مظلوموں سی شکل بنا کر ثابت میں سر ہلایا۔ یہ انایا بھی نہ پتہ نہیں تب سے کچن میں گھسی کیا کر رہی ہے۔ مووی شروع ہونے سے پہلے اس کو پاستا اور فرائز بنانے کا بولا تھا، آدھی سے زیادہ مووی گزر گئی ہے، ابھی تک بنا کر نہیں لائی۔ انایا لے بھی آؤ، اور کتنی دیر لگاؤ گے؟ سبین منہ بناتی بولی اور اس کا لہجہ بیزاری لیے ہوئے تھا۔ آخر میں وہ کچن کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں بولی تھی، جب انایا ہاتھ میں ٹرے تھامے تیزی سے باہر آئی۔ کیا پائے بنا رہی تھی یا سو رہی تھی؟ وہ کافی حد تک بدتمیزی سے گویا ہوئی۔ سبین! شہین نے فوراً سے بہن کو تنبیہ کرتی نگاہوں سے دیکھا تھا، جبکہ حیدر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ انایا ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھ کر لب بھیجے واپس مڑ گئی۔ جب حیدر نے آواز دے کر اس کو روکا، انایا رکو! وہ رک کر سواری نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ وہ سبین کی جانب متوجہ ہوا۔ یہ کیا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا؟ چھوٹے بڑے سے بات کرنے کی تمیز بھول گئی ہو تم؟ وہ کوئی ملازمہ ہے تمہاری جو تمہارے حکم کی تعمیل کرے؟ لہجہ دیکھا ہے تم نے اپنا؟ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم اس سے؟ معافی مانگو انایا سے۔ وہ سختی سے اسے جھڑکتا دو ٹوک انداز میں بولا۔ بھائی اس نے کچھ کہنا چاہا، جب وہ اس کی بات سنے بغیر اسے ٹوک گیا۔ معافی مانگو فوراً! آئی ایم سوری انایا، وہ شرمندہ سی سر جھکا کر بولی۔ بھابھی! حیدر بھابھی لفظ پر زور دیتا بولا تو انایا سمیت سب نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا، پر وہ سبین کی طرف متوجہ تھا۔ آئی ایم سوری بھابھی! اس کے کہنے پر حیدر کے تنے نقوش ایک دم سے ڈھیلے پڑے، جبکہ انایا شوق سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم سب میری ایک بات سن لو، تم سب انایا کو بھابھی بلاؤ گے، اس کا نام نہ سنوں میں کسی کی بھی زبان سے۔ اس نے انگلی اٹھا کر سب کو وارن کیا تو ہمدان کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ تو ہم سب تو انایا، میرا مطلب ہے انایا بھابھی کو بھابھی ہی کہہ لیں گے، لیکن وہ شہیر سے چھوٹی ہے، اس لیے وہ تو میرا مطلب ان کا نام لے سکتا ہے نا۔ حیدر کی گھورتی نظروں کو دیکھ کر اس نے فوراً سے اپنے لفظ میں درستگی کی تھی۔ وہ اس سے عمر میں چھوٹی صحیح، مگر رشتے میں اس سے بڑی ہے، اس لیے میرا نہیں خیال کہ اسے بھابھی کہنے میں کوئی پرابلم ہونی چاہیے۔ حیدر ایک لفظ شہیر کو دیکھ کر بولا تو اس نے سینئر فائز کے انداز میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر نفی میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ مجھے کیا پرابلم ہوگی۔ گڈ! انایا تم ٹرے لے کر روم میں جاؤ۔ اور وہ شہیر کو جواب دے کر انایا کی جانب متوجہ ہوا تو وہ گڑبڑائی، کچھ کہنے کے لیے لب واک کیے، پھر رک گئی۔ انایا واٹس ہیپن؟ جب سے کمرے میں آیا تھا انایا مسلسل اپنے ہاتھ مروڑ رہی تھی، کبھی ایک آدھا چکر کمرے کا لگاتی، پھر دوبارہ سے اسی پوزیشن میں کھڑی ہو جاتی۔ وہ اچانک سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، وہ جو اپنے دھیان میں تھی بمشکل اس سے ٹکراتے بچی۔ نتھنگ! وہ سنبھل کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ آر یو شیور؟ حیدر جانچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے ثابت میں سر ہلانے پر حیدر نے اس کے گال پر بکھری نمی کو اپنی انگلی کی پوروں پر سمیٹا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس ہوا تو وہ ایک دم سے اچھل پڑی۔ حیرت و بے یقینی سے پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ انایا کے انداز پر حیدر نے بامشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ بنا کسی وجہ کے تو آنسو نہیں آتے۔ وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ پیچھے ہٹ کر بات کریں نا پلیز۔ اسے خود کے اتنے قریب محسوس کر کے انایا کپکپاتے ہوئے بولی تو حیدر نے آبروئیں اچکائیں۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر کچھ سوچ کر چپ ہو گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حیدر کی لو دیتی نظروں کی تپش سے اسے اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پاس کھڑے ہونے پر پابندی دیکھنے سے پرابلم؟ اف! حیدر کے دل نے دہائی دی۔ کیسے دیکھ رہا ہوں میں؟ وہ بصیر سنجیدگی سے سوالیہ انداز میں گویا ہوا، مگر آنکھوں کی لپک انایا کو خود میں سمیٹنے پر مجبور کر گئی۔ ایسے گھور کر دیکھ رہے ہیں؟ پیچھے کی طرف قدم اٹھاتی، پلکیں جھپک کر بولتی۔ وہ اسے بہت کیوٹ لگی تو وہ بھی بلا ارادہ اس کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ جب انایا اپنے پیچھے موجود بیڈ سے ٹکرا کر گرتی کہ حیدر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچایا۔ انایا کا دل یوں دھڑکنے لگا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ کمر پر موجود حیدر کی انگلیوں کا لمس اس کے وجود میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ وہ حواس باختہ ہوتی اس کی گرفت میں پھڑپڑائی، چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ انایا نے حیدر کے ہاتھ کمر سے ہٹائے۔
आप प्लीज पीछे हटे ना, इतना इतना करीब क्यों खड़े हैं? हैदर के सीने पर हाथ रख के कहा, आवाज कंपकपा रही थी। अभी तो मैं तुम्हारे करीब आया भी नहीं हूँ और तुम्हारी ये हालत है। जब वाकई मैं ही तुम्हारे करीब आया तब क्या हालत होगी तुम्हारी? उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को और लखड़ाते लहजे को दिलचस्पी से देखता वो उसके कान के करीब झुककर माफी खेजी से बोला और भोले से उसके कान की लू को छूकर पीछे हटा। हैदर के लफ्ज और कान की लूप पर उसका लम्स महसूस करती वो तड़प उठी थी। हैरत और बेयकीनी से उसकी तरफ देखा, मगर उसके नजरों की लपक फौरन फौरन से नजरें झुकाने पर मजबूर कर गई वो, और उसकी नजर उठाकर फिर पलकों की बार गिराने पर हैदर का दिल जैसे पागल हो उठा था। दिल क्या झुककर उसकी आंखें चूम ले, मगर उसके वजूद की कंपकपाहट देखता वो खुद पर जब्त करता अपने हमकते दिल पर को काबू कर गया था। रो क्यों रही थी? उसके झुके सर पर नजरें जमाए संजीदगी से सवाल किया। आप दूर हो, मुझसे दूर होकर बात करें प्लीज। उसके वजूद से उठती महंगे कलोन की खुशबू अनाया के हवा झुटला रही थी। उसकी एक ही रट पर हैदर ने जिद से मुट्ठियां भेजी। क्यों? लहजा सख्त है। मुझे आपसे डर लग रहा है, वो लब काटती बेबसी से बोली। आंखें पल में नीम हुई थी, जबकि उसकी बात पर हैदर के तने नकुश एकदम ढीले पड़े। सुनो, हैदर ने अंगूठे और उंगली की मदद से उसकी थोड़ी थाम कर उसका झुका सर ऊपर को उठाया और उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी हिन्नी जैसी खौफजदा आंखें शिद्दत से उसे अपनी तरफ खींच रही थी। जानती हो मेरा क्या रिश्ता है तुमसे? वो जो कुछ और कहने वाला था, जाने क्यों ये सवाल कर बैठा। जी 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 जी, शौहर हैं आप मेरे। वो आंखें सख्ती से बंद किए बामुश्किल बोल पाई थी। फिर मुझे पर मुझे फिर भी आपसे डर लग रहा है। हैदर ने कुछ बोलना चाहा था जब वो तेजी से झुककर उसके पहलू से निकलती दूर जाकर खड़ी होती लब को चलती बेबसी से बोली। हैदर ने हैरत से उसकी हरकत देखी और उसकी बात और हरकत का महफूज समझता कहका लगा उठा। वैसे मैं डरावना तो हरगिज नहीं हूँ, पर तुम्हें फिर भी अगर मुझसे डर लगता है तो मेरे ख्याल में किसी हद तक डर लगना भी चाहिए। उसके सरापे पर भरपूर निगाह डालते बेबाकी से बोला तो उसकी बात पर अनाया सुख पड़ी। आप वो बोलने की ख्वाहिश दिल में दबाती लब भेज गई कि उसके अलावा कर भी क्या सकती थी। हैदर के नंबर पर एक इम्पोर्टेंट कॉल आई थी तो वो बात करने टेरेस पर आ गया था। उसके बाद वापस कमरे में आया तो वो रूम में नहीं थी। काफी देर तक वो उसका इंतजार करता रहा, मगर वो नहीं आई। डिनर करने भी वो नहीं आई। डिनर के बाद सब लॉन्च में बैठकर हल्की फुल्की गपशप करने लगे तो इसने समरा से उसके बारे में पूछा। अच्छा, चची अनाया कहाँ है? बेटा वो किचन में है। मैंने उसे मना भी किया था कि खाना मत बनाए, मैं खुद बना लूंगी, पर वो नहीं मानी और मुझे किचन से भेज दिया और खुद खाना बनाने लगी। वो तफसील से बोली तो शहीद उसामा और हमदान तीनों ने पूरी आंखें खोलकर समरा को देखा कि आज से पहले अगर कोई उसके जुमले में बोलता तो वो दोनों खवातीन उसे बुरी तरह झटक देती और उनका एक ही जुमला होता कि घर की जिम्मेदारी बहू पर ही होती है। ये कोई पहली लड़की नहीं है कि जो काम कर रही है। हम जब शादी होकर आए थे तब तुम्हारे बाबा की चचा ताया सब जॉइंट फैमिली में रहते थे। सारे घर की जिम्मेदारी हमने उठाई थी। अब उसे करने दो ताकि हमें भी कुछ सुकून नसीब हो। हमदान क्या समरा चची ने वही कहा है जो मेरे कानों ने सुना? हुसामा हैरत व बेयकीनी से बोला। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे कानों ने क्या सुना है, पर मेरे कानों ने शायद नहीं, यकीनन कुछ गलत सुना है। भाई ऐसा क्या सुन लिया तुम दोनों के कानों ने? मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? हारिस साहब भी वहां आकर इनके साथ बैठ गए। बाबा हमारे कानों ने ये सुना है कि सुमेरा चची ने कहा है कि मैं खाना बनाने किचन में गई थी। इसकी बात पर हारिस साहब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई, जबकि इनकी ओवर एक्टिंग पर सुमारा और राबिया बेगम पहलू बदल कर रह गई। हैदर ने एक नज़र किचन से के दरवाजे को देखा। वो जानता था कि वो इसके सामने से कतरा रही है। अब
को बातों में मुश्किल छोड़कर वो उठा और सबको बातों में मुश्किल छोड़कर वो उठा और सबसे माजरत करता खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर दरवाजे पर रुक कर शहीर से मुखातिब हुआ। शहीर, मुझे एक काम से बाहर जाना है, तुम चलोगे मेरे साथ? उसने दस्ता बुलंद आवाज में कहा। मकसद किचन में मौजूद वजूद को सुनाना था, जो उससे छुपने की खास खातिर किचन में पनाह लिए खड़ी थी कि अब वो बाहर आ सकती है। बाहर रास्ता साफ है। हाँ चलो, हाँ ज़रूर चलूँगा। शहीद साबित में सर हिलाता उठ खड़ा हुआ तो हैदर ने मुंह बनाया। उसका ख्याल था कि वो उसे मना कर देगा, पर जब वो फौरन से ही तैयार हो गया तो उसका हलक तक कड़वा हो गया। नाया ने दरवाजे की ओर से उसके बाहर चले जाने तक उसे देखा था। मोहब्बत झूठ नहीं थी, तुमसे गवाह है हर नमाज की दुआ। तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद उसने एक जगह गाड़ी रोकी और शहीद को वहीं वेट करने का बोलकर चला गया। 5 मिनट बाद वो उसे वापस आता दिखाई दिया और गाड़ी दोबारा सड़क पर भगाने लगा। तुम जब साथ ले ही आए हो तो कम से कम ये ही बता दो कहाँ ले जा रहे हो। जब उसे ड्राइव करते 10 मिनट गुजर गए मगर वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोला तो उसकी मुसलसल खामोशी पर शहीद अच्छा खासा चिढ़ गया था। तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का इरादा है, वो सुलगते लहजे में बोला तो शहीद ने फौरन से कानों को हाथ लगाकर इस्तग़फ़ार पढ़ा। हैदर ने चुभते से उसकी तरफ देखा। याद देखो, माना कि तुम्हारी बीवी तुम्हें घास नहीं डालती, पर इसका ये मतलब हरगिज़ भी नहीं है कि तुम अपनी दिल की तस्कीन के लिए ऐसी हरकतें शुरू कर दो। वो चेहरे पर मस्कीनी उतार कर बोला तो हैदर की पेशानी की रगें तन गई। क्या मतलब तुम्हारी बात का? देख भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तू मुझे जिस तरह का आदमी समझ रहा है ना, मैं वैसा नहीं हूँ, तो इसलिए बेहतर यही है कि तू अपनी बीवी को मनाने पर ध्यान दे। वो जितनी संजीदगी से बोल रहा था आंखों में उतनी ही शरारत थी, जबकि दूसरी तरफ उसकी बात सुनकर हैदर के तन बदन में आग सी लग गई थी। अगर मैं इस वक्त गाड़ी ड्राइव ना कर रहा होता तो खुदा की कसम तुम्हारी इस बकवास पर तुम्हारी पूरी की पूरी बत्तीसी बाहें निकाल देता। मेरी बीवी तो मुझसे नाराज है, पर तुझे मिलनी ही नहीं थी। वो सख्त लहजे में बोला तो उसकी बात को तसव्वुर करते उसने झिड़झिड़ी ली। गाड़ी एक झटके से एक खूबसूरत से घर के सामने रुकी बिल्डिंग पर नजर पड़ते ही शहीद ने उसे देखा। यहाँ पर वाकई ही तुझे मेरी बजाय अनाया भाभी को लेकर आना चाहिए था। अब के वो संजीदगी से बोला तो उसकी बात पर कोई भी रद्द अमल दिए बगैर वो उस गाड़ी से बाहर निकला तो शहीद भी उसके पीछे बाहर निकला। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वो जैसे दरवाजे के करीब पहुंचा तो गार्ड ने उसके पास आकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, अंदर जा सकता हूँ मैं? जी साहब जी, बिस्मिल्लाह करो, इसमें इजाज़त लेने वाली कौन सी बात है? पर साहब जी, घर पर इस वक्त कोई नहीं है, हो सकता है थोड़ी देर में कोई ना कोई आ जाए, आप इंतज़ार कर लें या फ़ोन करके पूछ लें। आपको पता है कि कहाँ गए हैं सब लोग? वो 2 उंगलियों की मदद से पेशानी मसलते हुए बोला। नहीं साहब जी, बस इतना जानता हूँ कि सुबह फजर से पहले सब लोग कहीं चले गए थे। उसके बाद छोटे साहब अशर दो बार घर आए थे थोड़ी देर के लिए और फिर चले गए। चले ठीक है, जब कोई आए तो इन्हें बता देना कि मैं आया था। वो उनसे अलविदाई मुसाफा करता वहाँ से वापस मुड़ आया। एज एवरीथिंग ओके? शहीर को वो कुछ परेशान लगा तो उसने इस्तफार किया। इस घर के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, जबकि हमारे घर के दरवाजे इस घर के मकीनों हत्ता के मुलाजमों के लिए भी बंद हैं। क्यों? मामा की वो भतीजी जिसमें इनकी जान बसती थी, इसी भतीजी से इतनी नफरत कि उसका चेहरा तक देखना गवारा नहीं है। क्यों? वो बहुत उलझा हुआ था। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्यों हुआ था, क्यों हो रहा है। बस मैं एक बात जानता हूँ, जो भी हुआ था या जो कुछ भी हो रहा है वो सब गलत है। शहीद ने मोड़ काटते कहा कि अब की बार गाड़ी ड्राइव कर रहा था और हैदर को कुछ भी ना बताना ही उसे मुनासिब लगा। हैदर ने चेहरे पर हाथ फेरा जैसे खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की हो और गाड़ी सीट से टेक लगाकर आंखें मूंदी तो उसका चेहरा नजरों के सामने आ गया। लब खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढल गए। शहीद ने कुछ कहने के लिए उसकी तरफ नजर डाली तो उसकी मुस्कुराहट देखकर उसकी दामनी होने की दुआ की। दर्द देती है तेरी खामोशी, मार देता है तेरा बेखबर रहना।
وہ جب کمرے میں آیا تو کمرہ خالی، اس کا منہ چڑھا رہا، تو اس کی پیشانی پر فوراً بل پڑے۔ کل جب وہ کمرے میں آیا تھا تو اس کی موجودگی بالکل غیر متوقع تھی، اور آج اس کی غیر موجودگی اسے غیر متوقع لگ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس سے چھپنے کے لیے وہ اس کے آنے سے پہلے ہی سو چکی ہوگی۔ وہ لب بھیجتا باہر جانے لگا۔ جب اسے ٹیرس پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ ٹیرس پر آ گیا۔ انایا کو کونے میں دیوار کے ساتھ لگ کر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ غور کرنے پر اسے محسوس ہوا جیسے اس کا وجود ہولے ہولے لہجہ تھا جب اس کی سسکی گونجی، انایا! حیدر تیزی سے اس کے قریب آیا تو وہ جو آواز سن کر وہ ڈر کر اپنی جگہ پر اچھل پڑی اور ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ رونا دھونا بھول کر وہ ہرنی جیسی خوفزدہ ہوتی اندھیرے میں آنے والے کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آپ نے ڈرا دیا مجھے، چہرے سے آنسو صاف کر کے وہ خائف سی بولی تھی۔ حیدر اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے میں لے آیا۔ انایا، کیا پرابلم ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے دن میں بھی پوچھا تھا تمہارے سے، پر تم نے نہیں بتایا مجھے۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ ماما نے کچھ کہا ہے؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر نرمی سے استغفار کیا۔ نہیں، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، اور پھپھو نے تو کل صبح سے بات ہی نہیں کی مجھ سے۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی۔ تو اس بات پر رو رہی ہو کہ ماما بات نہیں کر رہی؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو اس نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ آج بھائی کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ لفظ منہ سے بعد میں نکل رہے تھے، آنسو گالوں پر پہلے ہی پھسلنے لگے۔ مزید آگے بولا نہیں گیا تو وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ ملنے جانا ہے ان سے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے ثابت میں سر ہلایا۔ وہ لوگ گھر پر ہوں گے؟ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی جو 11 کا ہنسا عبور کر گئی تھی۔ نہیں، ہاسپٹل ہیں وہ لوگ۔ خیریت؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ جی، بھائی کی بیٹی ہوئی ہے تو اس لیے سب ہاسپٹل میں ہیں۔ اس کی بات پر ایک خوش کن احساس اس کے اندر جاگا تھا۔ آپ پلیز مجھے تھوڑی دیر کے لیے لے جائیں، میں ان سے نہیں ملوں گی، بس دور سے دیکھ کر واپس آ جاؤں گی، پلیز تھوڑی دیر کے لیے لے جائیں۔ وہ سسک اٹھی تو حیدر نے اس کے لفظوں کی تڑپ محسوس کرتے اسے سینے سے لگایا تو وہ بھی ایک مہربان حارس اپنے گرد پاتی بکھر گئی۔ 3 سال ہو گئے ہیں حیدر، میں نے ماما پاپا کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان مدھم لہجے میں بولی تو اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کی۔ کیوں؟ تم ایسی تو نہیں تھی، تم تو اپنے حق میں بولنے والی لڑکی تھی، تو اب کیوں سب کچھ چپ کیے سہتی رہی؟ کیوں اپنے لیے آواز نہیں اٹھائی؟ کس حق سے بولتی؟ ایک شکوہ کی نظر اس پر ڈالی۔ وہ سادہ سی مختصر لفظ میں اسے بہت کچھ کہہ کر گئی تھی۔ حیدر نے دل ہی دل میں خود کو کوسا اور ایک مہذب سے لفظ سے اس سے خود کو نوازا۔ جو کچھ گزر چکا تھا وہ ایسے ہی ہونے لکھا تھا، سو ہو گیا۔ وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، ہاں، مگر وہ اپنی آنے والی زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش ضرور کر سکتا تھا، اور کر بھی رہا تھا۔ تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ یا پھر ایسے ہی جاؤ گی؟ اس نے اس کے جوت پر نظر ڈالی جو ابھی تک کل صبح والے لباس میں ملبوس تھی۔ خود پر نظر ڈالتے وہ تھوڑی شرمندہ ہوئی۔ سمیرا چچی کہتی ہیں کہ تمہارا شوہر یہاں سے نہیں، گھر پر جوان جہاں لڑکے موجود ہیں تو زیادہ بن سنور کر نہیں رہا کرو۔ وہ شکایتی انداز میں بولی کہ ان کی یہ لاجک کبھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ویری بیڈ۔ نہیں، تمہیں آدھی بات سمجھائی کہ جب شوہر قریب نہ ہو تو ساری تیاری بے معنی ہوتی ہے، مگر یہ نہیں سمجھایا کہ جب شوہر اتنے عرصے بعد پردیس سے لوٹے تو اس کو ویلکم کرنے کے لیے خاص اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اس کا چہرہ 2 انگلیوں کی مدد سے اوپر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بات کو اپنی مرضی کا رنگ دیکھ کر میں نے خیزی سے بولا تو وہ ایک دم سے بلش کر گئی۔ کچھ حیا کی سرخی اور کچھ شدت و گریاں کی وجہ سے سرخ نم چہرہ، ہلکے ہلکے سوجے پپوٹے، گہری گھنگیر پلکوں پر ٹھہرے آنسو۔ وہ اس وقت اسے اس قدر خوبصورت لگی تھی کہ نظریں اس کے چہرے پر جم سی گئی تھی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اس کی نظروں کی تپش سے گھبراتی وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ اس کے فون پر کال آنے لگی تو وہ ٹیرس پر چلی گئی۔ کچھ پتہ چلا؟ فون کان سے لگاتے اس نے مدھم آواز میں سوال کیا اور دوسری طرف اس کی بات سننے لگا۔ مجھے ابھی سینڈ کرو، ان کی وجہ سے ہم بآسانی ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تم ساری تصویریں مجھے بھیجو۔ اس نے کال کٹ کی، ساتھ ہی اس کا فون وائبریٹ کرنے لگا۔ اسے تقریباً 15 کے قریب
तस्वीरें सेंड की गई थी। वो सब तस्वीरें 18 से 25 साल की नौजवान नस्ल की तस्वीरें थी। वो इन पर सरसरी नजर डाल रहा था जब एक तस्वीर पर आकर वो रुक गया। तस्वीर में मौजूद लड़की को उसने पहले भी देखा था, कब और कहाँ। उसने अपने जहन पर जोर दिया तो एक झमक्का हुआ। वो मिशेल की दोस्त थी और बहुत गहरी दोस्त थी, और मिशेल की शादी के बाद भी काफ़ी टाइम तक इनके घर पर आती रही थी। उसने वो पिक्चर आगे भेजी और साथ ही एक मैसेज टैप करके वो भेजा और फ़ोन बंद करके जेब में रखा। चंद लम्हों बाद अपने चेहरे पर हाथ फेर कर खुद को कंपोज वो करता रूम में आ गया। उसने पीच और हल्के ग्रे एम्ब्रॉयडरी का खूबसूरत नफीस सा लिबास जेब तन किया। हाथों में नाजुक से कंगन और कानों में छोटे खूबसूरत टॉप्स पहने, लबों पर हल्के रंग का ग्लोस और मस्कारा लगाकर, बालों का साइड टोस्ट और चोटी बनाती वो तैयार थी। वो बेड पर बैठा मोबाइल में मसरूफ था। जब अनाया के पुकारने पर नजर उठाकर उसे देखा, उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही उसने एक ठंडी सांस ली। अभी थोड़ी देर पहले चची की जो लॉजिक तुमने बताई थी वो मुझे समझ नहीं आई, पर अब तुम्हें देखकर लग रहा है कि वो किसी हद तक ठीक कहती थी। उसने अनाया के चेहरे पर आती शरारती लट कान के पीछे आट सी। हैदर, मैं आपको समझ नहीं पा रही। अगर आपको याद हो तो आप मुझे दुल्हन के रूप में छोड़कर चले गए थे और आपके लफ्ज थे कि तुम मेरी माँ की पसंद हो, मेरी नहीं, इसलिए इन्हीं के साथ रहो। मेरे दिल में और मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं। तो अब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे कि मुझसे पता नहीं कितनी मोहब्बत करते हैं। वो हाथ मरोड़ती बेचैनी से बोलते बोलते कुछ देर के लिए रुकी थी। मैं तो पहले भी ऐसी ही थी और शादी से पहले भी यही थी। तब तब तो कभी पलट कर दूसरी नजर तक नहीं डाली। जब दुल्हन बनी तो हर जबान के अपने लिए तारीफ सुनी और आपने एक नज़र देखना भी गवारा नहीं किया, और अब आपकी बार बार अपनी तरफ उठती नज़र मुझे उलझा देती है। देखो ना, शादी से पहले कभी भी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा था, तो अंदाज़ा भी नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत हो। और तुम्हारी पहली बात का जवाब ये है कि मामा ने मुझे प्रेशराइज करके मुझसे शादी के लिए फोर्स किया था। मुझे भी जिद चढ़ गई थी, इसलिए जिस दिन शादी के लिए हाँ की थी उसी दिन बाहर जाने का फैसला कर लिया था कि मुझे यहाँ नहीं रहना। इसी दिन वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया था और तुम्हें दुल्हन बने इसलिए छोड़ गया था कि मैं किसी दूसरी लड़की में इंटरेस्टेड था। मुझे लगता था कि मैं हिरा से मोहब्बत करता हूँ। क्लास फेलो थी और मैं नहीं चाहता था कि दिल और दिमाग में किसी और लड़की का तस्वर लिए मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करूं। वो बात करते करते थमा था क्योंकि दूसरी लड़की के जिक्र पर उसकी आंखें नम हुई थी। मैं तो पहले भी ऐसी ही थी और शादी से पहले भी यही थी। तब तो कभी पलटकर दूसरी नजर नहीं डाली। जब दुल्हन बनी तो हर जबान से अपनी की तारीफ सुनी और आपने एक नजर देखना भी गवारा नहीं किया। तभी उसके लफ्ज हैदर के कानों में गूंजे। उसने उसके कहे एक एक लफ्ज पर गौर किया तो साख्त रह गया। क्या वो मोहब्बत करती थी उससे? उसने हैरत व बेयकीनी से उसकी तरफ देखा तो वह नजरें चुरा गई। चलें, देर हो जाएगी। आँख की नमी साफ करते वो पहले से सेट दुपट्टा दोबारा से सेट करने लगी। चलते हैं, मगर पहले मुझे बात पूरी करने दो। उसने उसे कंधों से थाम कर बेड पर बिठाया और खुद पंजों के बल जमीन पर बैठा। वो बेचैनी से उठने लगी जब उसने उसके हाथ पर दबाव डालकर उसने उठने से रोका। यूएसए जाने के बाद मुझे बहुत जल्द एहसास हो गया था कि मैं उस लड़की से मोहब्बत नहीं करता था। वो एक वक्ती अट्रैक्शन थी जिसे मैं मोहब्बत समझ रहा था। उस इस जब ये एहसास हुआ तो उसके बाद ये गिल्ट बजा था कि एक लड़की को हर्ट करके आया हूँ। वो गिल्ट आहिस्ता आहिस्ता कम मोहब्बत में बदल गया। मुझे एहसास ही नहीं हुआ। जब यहाँ आकर तुम पर निगाह पड़ी तो लगा कि मेरी मंजिल यही थी जिसे मैं दर बदर की खाक छानते ढूंढता फिर रहा था। उसकी आंखों में देखता, उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थामता, एक एक लफ्ज पर जोर देता बोला, तो क्या मैं इतनी बुरी थी कि मुझसे मोहब्बत करने में आपको 3 साल लग गए? 3 साल लग गए हैदर, 3 साल लग गए आपको ये एहसास होने में कि मैं भी इस काबिल हूँ जिसके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, मुझसे भी मोहब्बत की जा सकती है। कभी ख्याल नहीं आया कि कोई है जिसे आपने नाम करके छोड़ आया हूँ? उसके लहजे में आंसू की आमेजिश थी। कोशिश के बावजूद आंसू
पलकों की बार तोड़कर गाल पर बह निकले थे। हैदर को लगा था जैसे उसके सारे लफ्ज दम तोड़ गए हों। वो कुछ बोलने की कोशिश में था जब वो बेदर्दी से अपने गाल रगड़ती दोबारा से बोल उठी। जब जा ही रहे थे तो कोई आस ही दिला जाते, कोई उम्मीद, कोई ऐसा जुमला जिसके सहारे मैं जीती रहती या खामोशी से चले जाते कि खुद से ही उम्मीद के दिए जलाकर खुशफहमी का जहान आबाद कर रखती। आप तो जाते जाते आंखों से ख्वाब भी छीन कर ले गए। पता है, जब आप चले गए तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे अंदर कुछ टूटा हो, कुछ मर गया हो मेरे अंदर। शायद दिल टूटा था, शायद मोहब्बत मर गई थी। अनाया प्लीज। उसने तड़प कर उसे मजीद कुछ भी कहने से रोका। उसे उसकी सारी बातों ने इतनी तकलीफ नहीं दी थी जितनी कि उसके आखिरी उसने तड़प कर उसे मजीद भी कुछ कहने से रोका। उसे उसकी सारी बातों ने इतनी तकलीफ नहीं दी थी जितनी कि उसके आखिरी एक जुमले ने दी थी। उसे महसूस हुआ था कि महबूब के मुंह से अपनी मोहब्बत की नफी किस हद तक तकलीफ देती है। वो 3 साल किस तकलीफ से गुजरी थी उसका अंदाजा उसे इस एक लम्हे में ही हो गया था। उसने हलक को तर्क किया और अपने लबों पर जबान फेरी। सॉरी। वो बहुत कुछ कहना चाहता था मगर लफ्ज हाथ छोड़ गए तो वो सर झुकाए बमुश्किल ये एक लफ्ज अदा कर पाया था, मैंने आपको माफ़ किया। अपने आंसू खुश करके मजबूत लहजे में बोली तो उसने हैरत से सर उठाकर उस खूबसूरत लड़की को देखा। क्यों, इतना छोटा जुर्म तो नहीं था मेरा जो इतनी आसानी से माफ़ कर दिया जाए। मेरे ख्याल में हम मशकरी औरतें ऐसी ही होती हैं कि शौहर का जुर्म चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके एक बार दिल से माफ़ी मांगने पर उसे माफ़ कर देती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनका शौहर किसी के सामने, हत्ता कि खुद के सामने भी झुके। उसे इस तरह से सर झुकाए अपने पैरों के पास बैठा देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो बात को फलसफे में बयान करने की कोशिश की तो वो मुस्कुराकर खड़ा हो गया और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे थामकर वो खड़ी हो गई और उसके हम कदम होती चलने लगी। जबकि लॉन में किसी से फ़ोन पर बात करते शहीन ने हैरत से इन्हें घर से निकलते देखा, फिर कंधे उचकाकर दोबारा से फ़ोन पर मसरूफ़ हो गया।